इसका वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मांगने वाले को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो जान लो तुम्हारे बीच में परमेश्वर का राज्य आ चुका है। Lord Jesus said, if I cast out demons by the power of the Holy Spirit, then know that the kingdom of God has come to you. शैतान को पता है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी मेरे राज्य को तहस नहस कर देगा। The devil knows that a Holy Spirit filled believer will destroy my kingdom. तो मैं क्या करूंगा? What should I do? मैं कुछ प्रचारकों को अपनी तरफ करूंगा और विश्वासी के जीवन में जो सोर्स है पावर का और सामर्थ का, उस पर अटैक करूंगा। I will bring some preachers on my side and I will attack that source of power which is against my kingdom. Amen. It just breaks my heart that there are some people who are on a mission to discourage believers from praying in tongues. मेरा दिल टूटता है देखकर कि कुछ लोग इसी मकसद से निकले हुए हैं कि विश्वासियों को रोके अन्य भाषा। Is that the gospel? क्या वो सुसमाचार है? Did Jesus say go into all the world and tell people not to pray in tongues? क्या यीशु ने ये सुसमाचार प्रचार करने को कहा कि दुनिया भर में जाओ लोगों को अन्य भाषा He में said बोलो? go in all the world, preach the gospel, heal the sick, cast out demon, cleanse the lepers, raise the dead. Freely you have received, freely give. उसने कहा दुनिया भर में जाओ, चेले बनाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, चंगाई करो, बीमारों को चंगा करो, आजादी से तुम्हें मिला, आजादी से दो। कुछ लोग कहते हैं अरे ये अंकित सजवान जो है ना चंगाई, हाँ करता हूँ चंगाई क्योंकि यीशु ने आज्ञा दी है जाओ और बीमारों को चंगा करो। Some people say Ankit Sajwan talks about healing, yes, because Jesus commanded me to go and heal अरे people. यीशु की आज्ञा मानिए तो पूरी मानो। उसने नहीं कहा केवल प्रचार करो, उसने कहा प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और ऐसा करके मेरे राज्य को प्रकट करो। If you want to obey Jesus' commandment, then completely obey his command. He did not say go and preach. He said go preach the gospel, heal the sick, cast out demons. क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर किसी के पास एक कथा है। आप उन्हें बाइबल से कथा सुनाओगे, वो आपको 10 कथाएं अपनी सुनाएंगे। Because we live in a country where everybody has a fairy tale, a tale to tell you. You'll tell them a story from the Bible, they will tell you 10 stories. जिस दिन अंधे की आंखें खोल दोगे सारी बहसबाजी बंद हो जाएगी। The day you will open a blind eye, the day you will open a blind eye, all the debates will cease immediately. हमें बहस करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर। We are not called to have a उसने कहा debate. मेरे राज्य की सामर्थ को प्रकट करो। He said manifest the power of my kingdom. तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. आपके ऊपर है। मैंने अभी आपको बोला आपको एक्सेसरी बन के रहना है किंगडम में या आपको एक धारदार हथियार बनना है। I said it's up to you. Do you want to be an accessory in the kingdom or do you want to be a powerful weapon? अगर आपने चोर की तरफ पिस्तौल दिखाई उसे पता है नकली हो गया नकली पिस्तौल है। If you show a gun to a thief and the thief knows, शैतान को भी पता है कौन असली और कौन नकली है। even the devil knows who is real and who is fake. बिना अभिषेक के असली नहीं हो सकते। Without the anointing, no one can be real. Amen. Hallelujah. कई लोग कहते हैं हाँ जी हमें तो पवित्र आत्मा मिल गया जब हमने विश्वास किया। अगर केवल विश्वास करने में पवित्र आत्मा मिल जाता तो पौलुस क्यों इन चेलों को कह रहा है क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला जब तुमने विश्वास किया? Some people say yes, we received the Holy Spirit when we believed. Then why is Paul asking these believers, did you receive the Holy Spirit when you believed? I wish I'll take you with a detailed teaching. Tonight is not the night for teaching, but there is a difference between being sealed with the Holy Spirit and being filled with the Holy Spirit. मैं गहरी शिक्षा में कभी फिर ले जाऊंगा, लेकिन एक अंतर है पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगने में और पवित्र आत्मा से भरने में। हर एक विश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है मगर वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं है। There is a seal of the Holy Spirit upon every believer, but not every believer is filled with the Holy Spirit. Ephesians 1:13 इसमें लिखा है जब आपने मसीह को अपनाया तो आपको मार्क कर दिया परमेश्वर ने। जैसे मार्क ऑफ द बीस्ट होता है
वैसी मार्क ऑफ द होली स्पिरिट भी होता है। पवित्र आत्मा ने मार्क कर दिया आपको। It says when you accepted the Lord put a mark on you. Just as there's a mark of the beast, there's a mark of the Holy Spirit that the Lord has put on you. जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। When you heard the truth, the gospel of your salvation, in whom you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Hear this. सुनिए, So every believer is sealed with the Holy Spirit, but every believer is not filled with the Holy Spirit. हर एक विश्वासी पर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, पर हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। Hallelujah. Acts 2:4. प्रेरितों के काम 2 उसका 4। And they were all filled with the Holy Spirit. और वे सब भर गए पवित्र आत्मा से। They were all filled with the Holy Spirit. वे सब भर गए पवित्र आत्मा से। And what happened when they were filled with the Holy Spirit? They began to speak with other tongues. और फिर क्या हुआ जब वो भर गए पवित्र आत्मा से? वो अन्य भाषाओं में बोलने लगे। सबसे बड़ा झूठ जो शैतान ने मसीह की देह को दिया है, हर किसी को नहीं मिलती। The biggest lie the devil has given to the body of Christ is not everyone gets the power. मैं आज तक ऐसे विश्वासी को नहीं मिला जो सच में भूखा है, मांगता है और परमेश्वर नहीं देगा। I have not met one such believer who is hungry and asks God and God will not give them Holy Spirit. ऊपरी कोठी में कितने विश्वासी थे? How many believers were there in the upper room? कितने थे? How many? कितनों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? How many did the Holy Spirit fall upon? अरे भैया तो सबके सब भर गए, बाइबल कहती है। All of them were filled with the Bible says. जोएल की प्रतिज्ञा क्या है? I will pour out my spirit on some flesh, नहीं, I will pour out my spirit on all flesh. What is the promise of the book of Joel? मैं अपना आत्मा कुछ पर उंडेलूंगा नहीं, मैं अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा है। What does all mean? सब का क्या मतलब होता है? All in Greek means all and all in Hebrew means all. यूनानी में सब का मतलब सब ही होता है और इब्रानी में भी सब का मतलब सब होता है। Amen? Hallelujah. Every time Holy Spirit came upon disciples, believers, there was an evidence of speaking with tongues. Every time. हर बार जब पवित्र आत्मा उतर के आया चेलों के ऊपर, एक सबूत था। हर बार जब पवित्र आत्मा उतरा तो जब हम मोती नगर में थे तो एक बहन आई और बोला, पास्टर जी पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता मगर मेरा बहुत मन है। मैंने कहा किसने बोला बहन तुम्हें कि पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता? When we were in Moti Nagar, sister came, she said, not everyone gets Holy नहीं, मुझे Spirit. सिखाया गया है कि प्रभु कुछ को देता है। अरे अगर वो कुछ को देता और कुछ को नहीं देता तो पक्षपाती परमेश्वर है। She said, no, I have been taught that he gives Holy Spirit to some but not to all, then he's a उसका partial वचन God. कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मांगने वाले को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? His word says, when you being evil know how to give good things to your children, why would he not give the Holy Spirit to him who asks? The secret to a victorious Christian life is a spirit-filled life. एक जय से भरा मसीह जीवन जो है उसका रहस्य है आत्मा से भरा हुआ जीवन। Not head-filled life, दिमाग भरा हुआ नहीं, spirit-filled life. आत्मा भरा हुआ जीवन। Demons don't care about my head knowledge. दुष्ट आत्माओं को मेरे दिमागी ज्ञान की I परवाह can नहीं है। put PhD and MDiv and whatever I want to put title. Demons don't care about my titles. Demons see, am I filled with the Spirit of the living God or not? मैं PhD, MDiv कितने भी ओहदे लगा लूं, तमगे लगा लूं, दुष्ट आत्मा को परवाह नहीं है। उनको दिखता है कितनी परमेश्वर की सामर्थ है मुझ में। Amen. Hallelujah. Isn't that awesome? क्या ये अद्भुत नहीं है? Say spirit-filled life. बोलो आत्मा से भरा जीवन। Spirit-filled life. आत्मा से भरा हुआ जीवन। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में एक व्यक्ति था कॉर्नेलियस, जिसके घर में एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसके सामने वो प्रकट हुआ और उसने कहा पतरस को बुलाओ। और उसके बाद पतरस वहाँ पे आकर प्रचार कर रहा है
और जब पतरस प्रचार कर रहा है तब देखिए क्या हुआ, प्रेरितों के कार्य 10 उसके 44 में देखिए पतरस, बाइबल कहती है जब पतरस ये वचन बोल ही रहा था तो पवित्र आत्मा, सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। मगर लोगों को कैसे पता चला कि पवित्र आत्मा उतरा? In Acts chapter 10, the Bible tells us about Cornelius' house that they call Peter. Let's leave it. I think everybody understands it. पतरस को कैसे पता चला, लोगों को कैसे पता चला कि ये पवित्र आत्मा से भर गए? आगे देखो क्या लिखा है। और जितने खतना किए वे विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। मगर उन्हें कैसे पता चला कि पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है? अगली लाइन, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। यीशु मसीह ने कहा एक पेड़ कैसे पहचाना जाता है? अपने फल से। जो सिखाते हैं अन्य भाषा नहीं है आज, उनको बोलो एक बीमार को चंगा करो। उनकी मिनिस्ट्री में देखो क्या दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, क्या लोग बीमार होते हैं, क्या लोग छुटकारा पाते हैं, या वो आपके सर में सूजन ले आते हैं और आपको घमंडी बना देते हैं। क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में जो सामर्थ्य है उसका स्रोत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। And Satan knows if he can disconnect you from the source of power, शैतान जाता है अगर मैं इसके सामर्थ्य के स्रोत से इसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो फिर ये ईसाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईसाई। और मैंने आपको बताया अगर आप हो ईसाई तो शैतान है कसाई। मगर अगर आप हो धधकती हुई आग तो शैतान भाग भाग भाग। आमेन। सोचो यीशु मसीह जो वचन है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 वचन ने हमारे बीच में डेरा किया, वचन दे धर कर आया और हमने उसकी महिमा ऐसे देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की। सो यीशु मसीह स्वयं वचन है। रोज आराधनालय जाता है, कुछ नहीं होता। 30 साल तक आराधनालय जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मगर 30वें साल स्वर्ग खुल गए और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसके बाद पहले दिन आराधनालय गया, दुष्ट आत्मा चिल्लाया। Demons hate the anointing। दुष्ट आत्माएं नफरत करती हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Leim broga shata braga dini. अरे ये सेवकाइयां बंद हो गई हैं। अपोस्टल, प्रॉफिट, कहाँ लिखा है? एक आयत लिखाओ। और अगर बंद हो गई हैं तो वो अपने आप को पास्टर बोलते हैं। अरे तो 5 बंद होंगी ना, 2 क्यों बंद होंगी? तो पास्टर भी मत बोलो अपने आप को। अगर परमेश्वर ऑफिस बंद करेगा तो 5 ऑफिस बंद करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये 5 ऑफिस तब तक हैं जब तक चर्च सिद्ध ना हो जाए। हालेलुया। जो कोई मिनिस्ट्री शैतान का राज्य डिस्ट्रॉय करेगी उसके लिए अफवाहें भी फैलेंगी, लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें। जब यीशु को नहीं छोड़ा तो जब आप सामर्थ्य में चलोगे आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। यीशु मसीह को बोला ये दुष्ट आत्मा की। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लोग झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाते। मैंने वाह, अब शैतान लोगों के कैंसर ठीक कर रहा है, अंधों की आंखें खोल रहा है, बहरों के कान खोल रहा है और परमेश्वर बीमारियां दे रहा है। वाह,
रोल चेंज कर दिए हैं। परमेश्वर ने कहा ऐसा है, बहुत चंगा कर करके मैं थक गया हूं, अब तू भी, मैं बीमार करता हूं, तू चंगा कर शैतान। ये शिक्षाएं हमने मान ली क्योंकि हमने वचन में उसको परखा नहीं। वचन में क्या लिखा है? Some people say God used to heal, He doesn't heal anymore. वो अब परमेश्वर चंगा नहीं करता। Then God should change His name from I am to I was. परमेश्वर को अपना नाम बदल देना चाहिए। मैं था, मैं अब नहीं हूं। अरे वो चंगा करता था, वो चंगा करता है और वो चंगा करता रहेगा। एक चीज सोचो आप, जो आपको बोल रहा है अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो, अरे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई व्यक्ति कर रहा है करने दो, चोरी थोड़ा ना कर रहा है, मर्डर थोड़ा ना कर रहा है। तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है अगर वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है? मगर शैतान को मिर्ची लग रही है कि नहीं है? अरे करके तो देखो, 1 महीने देखो क्या होगा। सामर्थ निकलने लग जाएगी आपके द्वारा, सामर्थ निकलने लग जाएगी। करके देखो। सोचो कौन है जो नहीं चाहता कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो? कोई तो है। सारे परमेश्वर के वो दास, सारे परमेश्वर के वो जन जिन्हें परमेश्वर ने माइटी रूप में इस्तेमाल किया, चाहे वो स्मिथ विगल्सवर्थ हो, चाहे वो कैथरीन कुलमैन हो, चाहे वो साधु सुंदर सिंह हो, चाहे वो डीजीएस दीनाकरण अंकल हो इंडिया में, या जो भी जॉन जी लेक हो, या जो भी जितने भी परमेश्वर के जन हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो सब कहते हैं हमारी नींव थी अन्य भाषा में प्रार्थना करना। इसीलिए उनके जीवन में प्रगटीकरण था सामर्थ का। जो कहता है अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं है, देखना जब दुष्ट आत्मा निकलती है भाग जाएगा। कहेगा डॉक्टर के पास ले जाओ उसको, डॉक्टर के पास। The Bible says in Psalm 66:3, it is by the greatness of your power your enemies will submit themselves to you. परमेश्वर तेरी सामर्थ की वजह से, तेरे सामर्थ के सामने तेरे दुश्मन तेरे सामने घुटने टेक देंगे। Amen. If you want to keep devil grounded in your life, devil just understands one language, and that is the language of power. Amen. अगर शैतान को नीचे रखना है पांव के, तो सामर्थ की भाषा सीखनी पड़ेगी। Hallelujah. Glory. कई लोग कहते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जब तक इंटरप्रेटर हो। Unless there is an interpreter, don't speak in tongues. Well, maybe God didn't know that, because when these people were speaking in tongues, they were not saying, is there an interpreter? I want to speak in tongues, I'm looking for an interpreter. Because there is a difference between the gift of the Holy Spirit and gifts of Holy Spirit. The gift is the Holy Spirit, and Holy Spirit has 9 gifts. परमेश्वर का जो दान है वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा के 9 दान हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, कि आप कंफ्यूज ना हो? एक्ट्स प्रेरितों कार्य 2:13 से 18 जल्दी से पढ़ेंगे। आई जस्ट वांट टू ले सम फाउंडेशन एंड देन विल प्रे सो दैट यू आर एब्सोल्युटली श्योर। और कई लोग कहते हैं ये जो मैं बोल रहा हूं शैतान बोल रहा है या पवित्र आत्मा बोल रहा है। अरे ये नॉनसेंस किसने सिखाया आपको? यीशु मसीह ने कहा जब पिता से रोटी मांगोगे तो सांप और बिच्छू नहीं देगा, जब पवित्र आत्मा मांगोगे तो पवित्र आत्मा ही मिलेगी, दुष्ट आत्मा नहीं मिलेगी। Amen. Others mocking said, they are full of the new wine.
they started to speak in tongues, and the people are saying they are full of the new. If they were just speaking Spanish or German or they are speaking Korean, why are people saying they are full of new wine? अगर अन्य भाषा में बोलना यही है कि आप एक अलग भाषा बोलोगे, तो वो क्यों कह रहे हैं मदिरा के दाखरस के नशे में है? आगे पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। 15 जैसा तुम समझते रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर का दिन चढ़ा है। उनको दिख रहा था ये नशे में। अब कोई नया बंदा यहां पे आएगा, आपको देगा रे ब्रो गो डोलो ब्रो, वो कहेगा भाई क्या हो गया? He will not understand it. So Peter had to explain. If they were just speaking a language, you don't need any explanation. Peter had to explain what's happening. आगे 16 परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है। 17 परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। I'll pour out my spirit on all flesh. There's a difference between gift of tongues and tongues you receive when Holy Spirit comes upon you. They are both, दोनों अलग अलग चीज है। ध्यान सुनिए, जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आता है, उसके प्रगटीकरण में वो अन्य भाषा बोलता है, ये अलग है। और पवित्र आत्मा का एक वरदान है जब वो आपको एक लियाकत देता है कि आप एक नई भाषा बोल सको, दोनों अलग चीज है। और जितने ये लोग बोलते हैं कि अगर आपको टंग्स में बोलना है तो आप इंटरप्रेटर के बिना नहीं बोल सकते, जब तक आपके पास अनुवाद करने वाला हो अन्य भाषा नहीं बोल सकते। तो उनके लिए मैं स्क्रिप्चर बोलना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 14:2, पहला कुरिन्थियों 14:2 क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। जब मैं मनुष्यों से बात ही नहीं कर रहा तो मुझे किस इंटरप्रेटर की जरूरत है? क्या परमेश्वर को इंटरप्रेटर की जरूरत है? क्योंकि यहां दो चीजें समझिए इसको, टंग्स फॉर पर्सनल एडिफिकेशन एंड टंग्स फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी। अन्य भाषा जो मेरी उन्नति करती हैं और अन्य भाषा जो कलीसिया की उन्नति करती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, वो आपकी लैंग्वेज परमेश्वर ने आपको दी है अपनी उन्नति करने के लिए। तो आप कितनी उन्नति करना चाहते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आपके ऊपर है। स्मिथ विगलस्वर्थ एक परमेश्वर के दास हैं, वो कहते हैं इससे पहले कि मेरा पांव जब मैं सुबह उठता हूं जमीन में छूता, मेरे मुंह से अन्य भाषा निकलने जाती है। रे ब्रोगा डीला ब्रागा सेको रो ब्रोगा डानामा, ऐसे उठते थे वो अपने कमरे में। कितनी उन्नति चाहते हो आप अपनी? बंद कर दो बार बार पास्टर पास्टर पास्टर। अरे सुबह उठो, मुंह खोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर कहां लेकर जाएगा तुम्हें। आपकी उन्नति आपके मुंह में है। परमेश्वर ने आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दिया है। अब आपको परमेश्वर के राज्य में एक ट्रैफिक पुलिस वाला बनना है या ब्लैक कैट कमांडो बनना है, वो आपके ऊपर है। यू डिसाइड, you decide. Amen. जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, किससे बात करता है? अभी जब हम इकट्ठा हुए, हमारा इकट्ठा होने का कारण क्या है? कि आप सब, आप बगल वाले से बात ना करो, मैं आपसे बात ना करो, हम सब मिलकर परमेश्वर से बातें करें। कोई अनुवाद की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर को बीच में प्रोफेसी देनी है, भविष्यवाणी देनी है किसी के लिए, वो देगा। मगर क्यों हमने ऑल नाइट प्रेयर मीटिंग रखी? कि हम पूरी देह को ये ट्रेन कर सकें कि कैसे लंबे घंटे आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। And let me give you a challenge. Are you struggling with a sin addiction? Continuously, consistently pray in the Spirit and see what will happen. Every desire of sinfulness will leave you. Walk in the Spirit and you will not gratify the longings of the flesh. आत्मा में चलो और तुम शरीर की किसी लालसा को पूरा नहीं करोगे। Amen. Hallelujah.
Thank you, Lord Jesus. जितने परमेश्वर के महान संत रहे हैं, उनकी प्रेयर ज्यादा अन्य भाषा में थी, और उनसे सीखकर मैंने अपने जीवन में जब वो अप्लाई करने लगा, मेरी 99% प्रार्थना अन्य भाषा है। मैं शॉपिंग लिस्ट नहीं खोलता परमेश्वर सामने, ओ प्रभु जी ये दे दे, प्रभु वो दे दे। जब आत्मा से आप परमेश्वर से बात करते हैं, डीप कॉल्स अनटू डीप, आप सबसे पवित्र प्रार्थना करते हैं जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। आमेन, हालेलुया। सो कितने लोग तैयार हैं मिस्ट्री में जाने के लिए? एक परमेश्वर के जन है, वो 48 आवर्स तक लगातार अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। उन्होंने बॉटल रखी पानी की और चेयर में बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे। जैसे ही 30वां घंटा पूरा हुआ या कुछ 40वां घंटा पूरा हुआ, उनकी आत्मिक आंखें खुल गई और वो सब कुछ ऐसे देखने लगे जैसे परमेश्वर, अपनी आंखें परमेश्वर ने दे दी हो। कितने लोग पवित्र आत्मा के वरदानों में चलना चाहते हैं? आई एम गिविंग यू अ की, अ सीक्रेट। प्रे इन द होली गोस्ट, प्रे इन द होली गोस्ट। आत्मा में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। कितने लोग यहां पे आए हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया? आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते? हाथ उठाओ। बस, बहुत बढ़िया, आज आपका दिन है। मगर परमेश्वर फोर्स फीड नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं पास्टर जी जरूरी है क्या? हाँ, तो मार खाते रहो फिर जिंदगी भर शैतान से। आज परमेश्वर महान काम इस जगह में करेगा। दिस प्लेस इज प्रेग्नेंट। आत्मा में ये जगह गर्भ धारित है साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स के लिए। I said this place is pregnant with signs, wonders and miracles in spirit. Amen. Hallelujah. तैयार हैं आप? आइए खड़े हो जाइए। जिनको आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, आपको केवल क्या करना है? डिजायर करना है, और पवित्र आत्मा आपको बोलने की सामर्थ देगा, लियाकत देगा, और आपको बस वो नई भाषा, उसको बहने देना अपने अंदर से। जीवन की नदियां तेरे अंतस्करण से बहेंगी। इसकम के निकलेगा, इसकम। ठीक है, मैं 1 2 3 बोलूंगा और बहने देना, ठीक है? आप जानते हैं, ओके, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। इधर उधर मत ताकना। Until you find the flow, press on it. एक फ्लो है आत्मा में। जैसे जो जहाज उड़ते हैं हवा में, एक अदृश्य सुरंग की तरह है जिनको जेट करंट्स कहते हैं। और पायलट्स क्या करते हैं? प्लेन को उस जो करंट, तेज करंट जो चल रही है, हवा बहुत तेजी से चल रही है, उसके अंदर प्लेन को डाल देते हैं। और जब वो एरोप्लेन उसके अंदर चल जाता है तो हवा उसको पुश करती है, और फिर वो क्या करते हैं? वो बहुत तेल बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं, वरना आप थक जाओगे 15 मिनट में। But if you find the flow, the jet stream in the spirit, you can pray for hours. Press on until you find the flow. और पवित्र आत्मा से मदद मांगो कि मैं आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना कर सकूं। मैं हमेशा कहता हूं, अब रात हो रही है, 2 बजने वाले हैं, अब आए हो तो पूरे आ जाओ, वरना घर पे रहते। अब नींद करी है बलिदान, तो पूरी रात अब प्रभु को पूरी आत्मा और सच्चाई से पुकारो। आमेन। वरना ना आधे अब सो, अरे भैया नींद आ रही है, अगर बेड ना आप उधर के रहे ना आप इधर के रहे। आए हो ना यहाँ पे? पड़ोसी को बोलो अब आए हो तो पूरे आ जाओ। फिर से बोलो अब आए हो तो पूरे आ जाओ। आमेन। गो फुल ऑन और गो होम। आधा कुछ नहीं, परमेश्वर आधा नहीं। वो कहता है यार ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, गुनगुना पसंद नहीं है मुझे। सोना है तो बाहर जाओ, सो जाओ। अगर हो यहां पे तो भर जाओ आत्मा से। आमेन। मैंने आपको क्या बोला? जितने आप भूखे हो परमेश्वर उतना उंडेलता रहेगा।
और तब तक परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर उंडेलता रहे जब तक मैं उमड़ने ना लग जाऊं। हालेलुया।